अस्सलाम वालेकुम। For those जो हमें पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, I'll just give a quick introduction. Empowerment through Learning is an online platform जहाँ पाकिस्तान के टेक enthusiasts जो हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, एक फ्री इंटरैक्टिव कम्युनिटी पोर्टल के ज़रिए अपने IT स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं with the learning resources which are being provided by expert IT mentors in the form of webinars, Ask the Expert sessions, hands-on boot camps and open source projects. ETL का अपना ऑनलाइन कम्युनिटी पोर्टल है विच इज़ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन पोस्ट योर टेक क्वेरीज एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस टू get direct help from current industry experts. It is also a platform जहाँ पे you get the opportunity to expand your network and get noticed in the tech market. So I would really encourage all of you to use that portal क्योंकि हम उसको आप कोई भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम फेसिंग टेक्निकल या आपको you can post there and we will be you will be getting help from an expert as soon as possible or direct आपको मिलेगी उस पे help. So that is something which you need with it. So once you get familiar to it, it's a very easy to use platform. Right now हम IoT, AIML, Web3 and block agile methodologies, embedded systems और career in open source जैसे tech domains को cover कर रहे हैं. ये भी हमने multiple workshops already host की हैं. इनकी और सारे जो चैनल पे भी अवेलेबल हैं and you can access them through the community portal. आज हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे यू कैन आस्क questions, just anything that can help you improve your profile or your search for a job or your search for your future career path, anything that you feel you need to know about or are not or confused about, you can ask our expert Alina Ayaz here. Alina Ayaz is an executive search consultant at TalentBridge. ये एक टेक रिक्रूटर है. अलीना ग्लोबल कैंडिडेट्स और कंपनीज के साथ काम करती हैं to connect them to the most relevant opportunities. She provides talent sourcing of tech and non-tech mid-level to C-suite executives for client companies in US, UK, Dubai, Malaysia और Singapore. इनकी expertise है in advising for recruitment strategies, talent acquisition and latest industry trends. Assalamu alaikum Alina. Walaikum salam, Faiza. Thank you so much for such a nice and a nice introduction. So Yeah. yes, so I'll just start with my own introduction. थोड़ा सा मैं अपने बारे में जितने भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, thank you so much for joining and I hope I can be of help. आप लोगों की जो questions हों उनको मैं आंसर कर सकूं properly. सो आई एम ब्रिंगिंग माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड मे बी यू कैन रिलेट टू इट, या उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली एक दूसरे को. So I have experience in HR, general HR and all those aspects for quite many years. ये था कि मैंने कुछ अरसे की ब्रेक ली थी and then I joined a recruitment agency. वो रिक्रूटमेंट एजेंसी स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री को ज़्यादा केटर कर रही थी. ऑब्वियसली बाकी भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, बट दैट कंपनी वाज स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट वर्टिकल एट दैट टाइम एंड आई जॉइंड देम. आई होप आई एम ऑडिबल. Yes, very audible. Okay. So I joined them at that time when that vertical was starting. तो बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया. So it was a quite learning experience. अच्छा, वहाँ पे ये था कि डिफरेंट कंपनीज आती थी जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी. दे वर लोकल विद इन पाकिस्तान एज वेल एज इंटरनेशनल, जिनको हम हेल्प आउट करते थे बेस्ट कैंडिडेट्स को कनेक्ट करने में. और उसी तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट रहा है एंड इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो कि आपको शायद जनरली ना कोई इस तरह से हेल्प आउट कर रहा हो, बट आप जब खुद उस फील्ड में होते हैं एंड यू लुकिंग फॉर पीपल एंड यू टॉकिंग टू पीपल और कंपनी के सीईओज हायरिंग मैनेजर्स के साथ, तो आपको इनसाइड स्टोरीज पता चलती हैं, इनसाइड यू कैन से उनकी इंक्लिनेशंस पता चलती हैं.
एंड दैट्स व्हाट आई एम ब्रिंगिंग हियर टुडे सो दैट आई कैन हेल्प यू कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आप उस हायरिंग प्रोसेस में आपको कंपेटिटिव एज कैसे हो सकता है, एंड आई होप इट विल हेल्प यू. सो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ फ्यू थिंग्स, और अगर आपके साथ साथ कोई क्वेश्चन हो आई विल बी हैप्पी टू आंसर. साथ साथ ही करते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट. सो जस्ट टू स्टार्ट विद जी फायजा, you want to add something here? Yeah, I just wanted to urge all our audience to please voice your questions. You can unmute, you can raise your hands and unmute and ask. That is preferable. अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, but please, this is an interactive session and she is here to answer your questions. So please voice your questions. आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर मैं आप लोगों की आवाज़ में ही क्वेश्चन सुन लूँ, बिकॉज दैट विल बी ईजियर टू हैव अ कम्युनिकेशन करते हुए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो. यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आपके उस तरह से क्वेश्चंस ले लेते हैं. अच्छा, आई जस्ट स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ व्हाट टाइप ऑफ टेक रोल्स आई हैव वर्कड विद और उनका एक्सपीरियंस. सो आई हैव वर्कड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग साइड, जो कि बहुत बिगिनर लेवल से लेके लाइक जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनीज के, उनकी हायरिंग तक विद इन पाकिस्तान एज वेल एज ग्लोबल. एंड आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स एंड कंपनीज फ्रॉम अमेरिका, यूएस, दुबई, मलेशिया एंड सिंगापुर. सो मोस्टली मेरे इन कंट्रीज के साथ है, बट अदरवाइज कैंडिडेट्स में इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स, एंड अमेरिका ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे भी सेग्रीगेशन मानी जाती है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को. तो वो एक बिल्कुल, आप जब उनसे बात करें तो वो भी एक डिफरेंट मार्केट है, यू कैन से. सो यस, उसके अलावा जो टेक स्टैक्स हैं वो आप लोगों के डिफरेंट होंगे. आई जस्ट रेड somebody said WordPress. yes, there are different aspects जिस पे मैंने उस लिहाज से भी काम किया हुआ है. MERN stack, Angular, all those aspects. So we'll just discuss it later on. I'll just start with the profile building, और जिस पे थोड़ा पहले भी सेशन हो चुका है, how to make your build your resumes, और ATS के रिलेटेड आप उसको किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक तो ETL ऑनलाइन के वहाँ पे लिंक्स शेयर्ड हैं, आप वहाँ पे वो देख सकते हैं. एंड अदर देन दैट आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑन दैट, और फिर वी मूव फॉरवर्ड. सो वील स्टार्ट विद योर रेज्यूमेज एंड लिंक्डइन Sorry, प्रोफाइल्स. Alina, can I जी, interrupt you there? We have a question. I'll just post it on, I'll just share it on the screen श्योर with you. श्योर You श्योर. can answer that first. Ji, can you see it? Yes, I can see. So I'm a Flutter developer, and in the past I had done WordPress development for 1 year. So okay. Irfan, thank you so much for this question. Yes, you have to add everything. आपका ये भी मैटर करता है कि आप फ्यूचर में आप अपने लिए क्या देख रहे हैं. Are you only looking for Flutter development, या आपने WordPress के लिए भी आप ऑप्शन ओपन रखना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली आप अपना सारा एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करें, इधर इट्स WordPress, Flutter, और उसमें आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही थी. बिकॉज होता ही है कि बहुत सारी कंपनीज, जैसे स्टार्टअप्स का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. स्टार्टअप्स कम लोग हायर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग देखना चाह रहे होते हैं जो कि उनको मैक्सिमम हेल्प आउट कर सकें. It saves them time and energy, and the team work as well. So they are looking for those. अगर आप दोनों चीज़ों के लिए ओपन हैं and they are you want to work on those aspects as well, तो तब आप प्लीज़ ज़रूर ऐड करें और उनको डिटेल में ऐड करें कि आपकी वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, और वो आपने वहाँ से अगर शिफ्ट भी किया फ्लटर पे कम्प्लीटली तो क्यों किया, व्हाट वाज योर रीज़न. ये आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी ड्यूरिंग जो आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे होंगे, कि क्योंकि ये इंटरव्यू में बाद में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो अब बनाते हुए आपको ये खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट्स पूछी जा सकती हैं आपसे. So yes, add both of them, please. Okay. So Hello, Elena. I have a question. sure. Can I ask? Yes, ma'am. Sorry to interrupt you. Yeah. Okay. So I was not able to find the raise hand option, so I just interrupted. The question is, right now I'm doing PhD from Italy, and this is a specialized PhD in blockchain. But my previous experience is about software development, like specifically in Python, and I have
some special training in data science and AI. Now I want to combine these, like expertise in my profile, and it is a bit of, awkward for, I guess, awkward for recruiter because that is diverse and both are totally different. So what could be the suggestion for me personally to do that? Like combining them, or what should I do? Make a profile for blockchain separately, or make a profile for data science separately, or maybe combining them both? ओके, थैंक यू उस्मान। इसमें सबसे पहले मेरे कोई क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। आई वुड लाइक टू सी योर प्रोफाइल फर्स्ट, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग पीएचडीज, एंड पीएचडी के साथ आपने मेंशन किया कि एआई साइड पे भी यू हैव द एक्सपीरियंस। यूजुअली एआई और मशीन लर्निंग की जो रोल्स होते हैं उसमें जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है स्पेसिफिकली वो पीएचडी को प्रेफर कर रहे होते हैं, मास्टर्स और पीएचडी को। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। आई वुड लाइक टू हैव वन ऑन वन इफ दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू लेटर ऑन टू हेल्प यू आउट मोर इन डिटेल। इफ़ यू वांट टू ऐड ऑल दोज एस्पेक्ट्स, येस यू कैन ऐड। आप वन बाय वन जहाँ जिस लेवल पे आपने जिस चीज़ के साथ काम किया है, जिस टेक स्टैक और मे बी ब्लॉकचेन और सारी चीज़ों, वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो आपकी प्रोफाइल की समरी होती है जो स्टार्ट में आप मेंशन करते हैं लिंक्डइन पे या रेज्यूमे में, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं आपने स्टार्ट किया एंड व्हाट मेड यू चेंज और शिफ्ट टू द अदर टेक स्टैक, और व्हाट मेड यू कंबाइन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो आपकी इंटरव्यूज में डिस्कस होती हैं, बट ये सब चीज़ें आपका इंटरेस्ट और आपकी एक जर्नी शो करेगा। ये जर्नी शो करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी प्रोग्रेसिव माइंडसेट शो कर रहा होता है कि यू स्टार्टेड विद वन टेक, यू शिफ्टेड टू अनदर वन, व्हाट मेड यू डू दैट, एंड नाउ व्हाट इज योर एम एंड गोल इन द फ्यूचर, जिसके लिए फिर आपकी वो नज़र आती है कि इन चीज़ों को कंबाइन। सो ऐड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। रिक्रूटर का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। रिक्रूटर का बैकग्राउंड बहुत टेक डेवलपमेंट साइड पे नहीं होता है एंड ऑल दोस। व्हेन दे आर लुकिंग इनटू योर प्रोफाइल, क्योंकि स्टार्ट में तो रिक्रूटर्स देख रहे होंगे, तो दे विल लुक इनटू ऑल दोस टेक एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंसेस, स्किल्स जो आपने अंदर मेंशन किए हैं, वो कीवर्ड्स के थ्रू आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। सो आपका जो जो एक्सपीरियंस है प्लीज डू ऐड दैट, ताकि उसके लिहाज से आपको आपकी रीच बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग जो हैं आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट ले सकेंगे। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। Thank you बट very इफ much. Oh, great. Hi, Ehsan, A-level student. Yes. So, जैसे मैं पहले भी बात हुई थी कि आपकी जो प्रोफाइल है अभी इस वक्त बिल्ड हो रही होगी फॉर, आप एएस में हैं या ए2 में हैं, तो डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपका भी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंसेस होंगे और मे बी कम्युनिटी सर्विसेज और ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि आपने अपने स्कूल के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे या किसी और आउटसोर्स किए हुए वे। डू ऐड दोज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज एप्लीकेशंस हैं जब वो आप बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है, ऐसे राइटिंग करनी होती है। सो उसके अंदर जो आप अपने बारे में लिखेंगे वो चीज़ आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करें विद द समरी। उसके अलावा आपकी इंटर्नशिप्स, आपके स्कूल में आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। मैं इसलिए ये सब चीज़ें मेंशन करती हूँ कि आपका एक एक पॉइंट, एक एक एक्शन, आपने कोई इनिशिएटिव लिया था, मे बी आपने सिर्फ ये इनिशिएटिव लिया था कि हम एक कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे कहीं पे स्कूल में, सो दैट एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम दे कैन जस्ट पुट इन द कंप्लेंट्स देयर। ऑल दोज थिंग्स जिसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी इनिशिएटिव टेकिंग और अदर एस्पेक्ट जो कि आपके सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादा मेंशन करें, क्योंकि इस वक्त आई अंडरस्टैंड कि आपके जो वर्क रिलेटेड स्किल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट यू कैन ऑलवेज ऐड योर सॉफ्ट स्किल्स। और इन चीज़ों को जो कंपनीज ओवरऑल देखती हैं, आपके हाउ ओपन आर यू टू लर्निंग, जस्ट ऐड दोज थिंग्स इन सच अ वे कि आपने किस तरह से एक एस्पेक्ट आया, आपने वहाँ पे कैसे लर्न किया एंड यू केम अप विद न्यू स्ट्रैटेजी एंड इट वर्कड, एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स दैट कैन हेल्प बी हेल्पफुल। ये आपको इंटर्नशिप्स लेने में भी बहुत हेल्पफुल होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में थोड़ा सा कनेक्शन वाली चीज़ आती है ज़रूर, जिसमें आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है, बट उधर भी आपकी जहाँ नहीं भी है, आपकी अगर ऐसी प्रोफाइल बिल्ड हुई भी है जहाँ पे इट शोज़ योर
लीडरशिप स्किल्स, योर ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि कंपनीज देख रही होती हैं कि ये कितना जल्दी सीख सकता है, ये कितना जल्दी हमारी कंपनी के साथ जेल इन हो सकता है, और हम इनको सिखा के प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ऑल दोज एस्पेक्ट ऐड दोज थिंग्स देयर विद योर प्रोजेक्ट्स जो आपने स्कूल में कर रहे हैं, या आपके आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज एप्लीकेशंस में भी हेल्प करेगा, और जॉब्स में इंटर्नशिप्स में भी। ऑलराइट, सो इंटर्नशिप्स के लिए यूजुअली जैसे मैंने मेंशन किया, इट कम्स डाउन टू कनेक्शंस। अब आपकी इंटर्नशिप्स का बहुत बड़ा एस्पेक्ट यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हमें कोई भी इंटर्नशिप मिल जाए, वी जस्ट वांट टू एंटर समवेयर, हमारी इंटर्नशिप नज़र आनी चाहिए प्रोफाइल में। सो इट्स बेटर कि आप ऐसी इंटर्नशिप सेलेक्ट करें अपने लिए जो कि आपकी आगे फील्ड से रिलेटेड हो कुछ। जैसे इफ़ यू वांट टू गो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड, तो आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करें, या ऐसा प्रोजेक्ट किसी और कंपनी का जहाँ पे वो आपके फ्यूचर गोल के साथ थोड़ा सा रेलेवेंसी बना सके। इस वक्त से आपको क्लैरिटी अपनी ले आनी चाहिए, या लानी शुरू कर देनी चाहिए कि 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट टाइप की इंटर्नशिप्स कर लें, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेस्ट फील्ड है, और वो इंटर्नशिप्स आपको ऐड कर सकती हैं। यस, कनेक्शंस हेल्प। कुछ ऐसे रिक्रूटर्स हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू, क्योंकि उनके पास इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम रोल्स आ रहे होते हैं, एंड जहाँ पे आपको सिखा के इंटर्नशिप्स भी होती है, और वो पार्ट टाइम वर्क के लिए भी कंसिडर हो सकता है, एंड दे कैन हेल्प यू देयर। Okay, great, Lena. So for now, if you want to give us any other tips, though, that's a good time because we don't have any questions right now. Okay, great. So I'll just start with the LinkedIn profile, क्योंकि LinkedIn profile आपकी मोस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करेंगे। तो वहाँ पे आपने जैसे इंटर्नशिप की हुई है सिर्फ, या आप बिगिनर लेवल हैं, आपने एक कोई जॉब किया हुआ है या पार्ट टाइम किया हुआ है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड यू लुकिंग फॉर सम शिफ्ट और चेंज और जो भी, तो आपके टाइटल नाम के नीचे जो एक हेडर आता है जिसको आप हेडलाइन भी बोल सकते हैं, वहां पे आपने वो चीजें मेंशन करती हैं जो आपने एक्सपर्टीज आपकी है, एंड व्हाट यू लुकिंग फॉर, एक स्टेप ऊपर या अराउंड दैट, ताकि रिक्रूटर्स और जो कंपनीज हैं वो आपको उसके थ्रू सर्च करना आसान हो जाएगा, एंड दे विल रीच आउट। और उसके अंदर आप अपनी रेज्यूमे है अगर, तो उसमें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक जरूर शेयर करें। इट विल हेल्प रिक्रूटर्स इन, लाइक ज्यादातर कंपनीज और रिक्रूटर्स वहीं से आपको रीच आउट कर रहे होंगे। इफ यू हैव गिटहब, अच्छा सबसे पहले टेक से रिलेटेड आपकी गिटहब प्रोफाइल एक आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, उसमें आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स भी आपने ऐड किए होते हैं, पर गिटहब प्रोफाइल इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय दी कंपनीज, या जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि हमें इनके बारे में थोड़ा सा इनकी टेक स्किल्स का भी आइडिया लेने के लिए, कि आपकी गिटहब पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपका क्या टास्क था, किस लेवल पे हैं वो इस वक्त, और किस लेवल पे आपको मिले थे, ऑल दोज एस्पेक्ट्स। गिटहब है, देयर इज बिहेंस, ड्रिबल, ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर साइट पे आ जाते हैं। अगर आपके डिज़ाइन है वहाँ पे पोर्टफोलियो बने हुए हैं, तो आप उनके लिंक ज़रूर शेयर करें, दैट विल बी हेल्पफुल। और बहुत सारे टेक रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग से वेबसाइट डेवलप हुई होती है, और मे बी वर्डप्रेस पे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक प्रोजेक्ट्स मेंशन किए होते हैं अलग से, अपने स्किल्स, जैसे अगर वो डिज़ाइनर्स हैं तो वो अपने डिज़ाइन जो एस्थेटिक्स हैं वहाँ पे वो शो किए होंगे, डेवलपर्स हैं तो वहाँ पे उन्होंने डेवलप, ये अगर आपकी जॉब अभी नहीं भी हुई है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ये एज अ प्रोजेक्ट इसको आप ले लें। ये आप जब अपना शेयर करते हैं कंपनीज के साथ तो उनको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपके स्किल्स किस टाइप के हैं, आप अभी किस लेवल पे हैं डेवलपमेंट के, एंड इट शोज ऑल्सो कि आप कितना लाइक लर्निंग के लिए ओपन है। सो यू हैव मेड योर ओन प्रोजेक्ट, योर ओन वेबसाइट, जहाँ से यू कैन शो योर सेल्फ मोर। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, उसके अलावा आप जो समरी है विच आई जस्ट मेंशन्ड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने सिर्फ ये नहीं मेंशन करना कि आपकी, ऑब्वियसली वो आपकी होती तो वर्क रिलेटेड है या आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर यू शुड मेंशन योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। जैसे मैंने अभी मेंशन किया
कि आपकी जैसे ए लेवल्स के या जैसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, बिगिनर्स लेवल के लिए वो ज़रूरी हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स भी हैं, टेक में हैं, सो इवन देन ट्राई टू ऐड फ्यू थिंग्स ऑफ योर्स विच कैन शो। आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, आप किसी भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे हो सकते हैं, वहाँ पे आपके आपको हम सुन नहीं सक रहे होते, सो वहाँ पे आपकी ये वर्ड्स हमें ज्यादा नजर आते हैं, जैसे जिसमें ये शो हो सकता है कि आपकी हाउ ओपन यू आर टू लर्निंग न्यू थिंग्स, या आपका रिजिड एक माइंडसेट हो गया कि आई नो एवरीथिंग, आई नो दीज स्किल्स, सो आई कैन डू एंड आई कैन गिव दिस टू कंपनी। या आप ये कह सकते हैं आई नो दीज थिंग्स and I am very good at it, but I am open to new opportunities. Anything comes up, I am open to learn. और वहाँ पे फिर it does show कि आप कितने इसमें जेलिन हो सकते हैं, all those aspects. उसके अलावा आप अपने projects mention कर सकते हैं, आप अपने goals, what are you looking forward to? आप आगे अपनी फ्यूचर को नेक्स्ट 5-10 years में कहाँ देख रहे हैं, एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट, व्हाट आर यू प्लानिंग। एक और चीज समरी में आप ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपकी रेज्यूमे में स्किल्स का एक अलग सेक्शन होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग में मेनली स्किल्स आप अलग से मेंशन करते हैं, बेशक वो लिंक्डइन हो या रेज्यूमे। जो उसकी समरी है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी मेंशन करते हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द रिक्रूटर्स एज वेल। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सो हेडिंग उनकी होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट छोटी सी, और उसके अंदर फ्रंट एंड में आपने कौन कौन से टेक से काम किया हुआ है, मे बी एंगुलर, रिएक्ट, नेक्स्ट व्यू, जो भी आपकी हैं आप वो मेंशन कर देते हैं। बैक एंड उसमें क्या है, आपके डेटाबेसेस में आपने क्या किया हुआ है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि आपके सेपरेटली इट शोज। बेसिकली आपकी जो समरी है ना वो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड को भी शो करेगी कि आपको आपने जो जो कुछ सीखा हुआ है आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपकी सोचें ऑन पेपर या वर्ड्स में कैसे नजर आ रही हैं। तो वो एक ओवरव्यू हो जाता है कि आप का माइंडसेट कैसा है। सो यूज योर वर्ड्स इन सच अ वे कि वो आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ दिखा सकें। सो दैट इज द मेन थिंग। सही है, so it should represent you well, and it should represent how capable you are in a proper sense. बिल्कुल ठीक है। So Alina, tell us कि अगर हम like for a fresher applying for an entry or a beginner level job, उसके लिए what should we keep in mind, and is it important to start you have your first job as a very impressive one? अच्छा, ये जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, फर्स्ट जॉब जो आप स्टार्ट करेंगे इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स होती हैं आपकी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। ठीक है, आप इंटर्नशिप्स करके वहां से आइडियाज ले रहे होते हैं, आप 2 करें 3 करें, उनको सिर्फ ड्यूटी ना समझें उनको आप। ये ऑब्वियसली बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं जा रहा था। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई हैव वर्कड एट मेनी प्लेसेस, और वहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये है कि आप वहाँ पे जिस तरह की इंटर्नशिप्स ले रहे हैं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अब आपकी डायरेक्शन क्या बेहतर है। देन फर्स्ट जॉब आप उस जगह में या उस टाइप की कंपनी में लें जहाँ पे आप एक्सेल करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर डेवलपमेंट साइड पे जाना चाहते हैं तो आप डेवलपमेंट में ही कहीं मुझे यही जॉब चाहिए वरना मैं नहीं लूंगा। आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट स्टार्ट के अच्छा मैं सिर्फ डाटा एनालाइज कर लूंगा, और मे बी यू कैन से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह से आप उनको ज्वाइन कर लें विच हैज़ दी एबिलिटी कि आपको अगर आपके वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस और जो आपकी लर्निंग एप्टीट्यूड है उसको देखते हुए यू कैन बी गिवन अ जॉब रोल इन द वो उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्पेस हो या आपकी लाइकिंग के लिहाज से हो। that will be helpful. So keep the company and the direction in mind और उसी के towards काम करते रहें। I remember I joined bank. I'll just give you a quick example here of myself. So I started, I was the HR person and I started working with the bank through account opening and customer service as well with the marketing side, and I was doing my masters और उसके साथ साथ I wanted to build my profile. So कुछ अर्सा मैंने वो किया, एक्सरसाइज जो भी थी एक, एंड इट वाज वहां से भी सीखते हैं। एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग स्पेस फॉर मी इन HR एज वेल, बिकॉज HR वाली साइड पे इट्स
डिफरेंट एस्पेक्ट, वहां पे आपको अपनी डिफरेंट होता है। टेक जो है आपका टेक्निकल स्किल है, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग इट, और उसके साथ अपने अंदर भी आप काफी चेंजेस होती हैं। तो एक दो चीजें मैं मेंशन करूंगी पर्सनालिटी वाइज भी, एंड इट जस्ट कीप्स गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज मोर। जो नॉन टेक फील्ड्स हैं वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेना होता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने जब जॉब करनी है वहां पे जस्ट स्टार्ट विद द कंपनी एंड डायरेक्शन, अपने माइंड में रखते हुए आप वहां पे एंटर हो, एंड देन यू हैव द ऑप्शंस कि आप एक रोल से दूसरे रोल में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, व्हाट शुड आई कीप इन माइंड? ओके, एंट्री लेवल जॉब जब स्टार्ट करेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको यू कैन थिंक। एक जो सबसे पहले ध्यान में मेरी चीज आई है वो ये कि आपने ये देखना है कि हु विल यू बी रिपोर्टिंग टू, द टाइप ऑफ टीम यू विल बी वर्किंग विद, द कल्चर ऑफ दैट कंपनी। ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए। कंपनीज भी देख रही होती हैं आप में कि विल यू बी द राइट फिट फॉर देम, लेकिन आपने अपने एंगल से भी ये देखनी है। हम सिर्फ ये सोच के कहते हैं कि जॉब मिल गई बस कर लेनी है। आपने इस तरह से जॉब करनी है जहां पे आपको, जहां पे इंटरेस्ट बिल्ड हो, वहां पे ऐसे आपके सुपीरियर या ऐसे टीम है जहां पे यू हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग, प्रोग्रेसिंग। आपने ये चीजें अपनी साइड पे क्वेश्चंस रखने हैं जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं या वैसे उनसे बात होती है। कीप दैट इन माइंड कि आप किस टाइप का अपने लिए देख रहे हैं, क्योंकि कल्चर अगर आपके लिहाज से ठीक नहीं है उस कंपनी का, वहां पे पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंटरनेट पे, और मे बी आपके कुछ जानने वाले लोग होंगे जो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा नो हाउ रखते हैं। आप उनसे ज़रूर फीडबैक लें, हाउ इज़ द कंपनी, हाउ इज़ द फीडबैक, और वहाँ पे क्या बेहतर है। उसके अलावा कि वहाँ पे प्रोग्रेशन आपका, वहाँ पे प्रोग्रेशन जो उन्होंने जर्नी रखी हुई है या सोचा हुआ है कि इस जिस जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हैं वहां से आगे आपका प्रोग्रेशन कैसी है, अगर वो कंपनी ने डिसाइड ही नहीं किया हुआ तो यू वोंट हैव अ क्लियर पिक्चर कि आपने किस तरह करना है। ऑब्वियसली कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप ज्वाइन कर लें, फिर चूं चूं प्रोजेक्ट आएगा हम देखते जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। वहां पे आप लर्निंग एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। लेकिन डू लुक इन टू हु विल यू बी रिपोर्टिंग टू, द कल्चर ऑफ द कंपनी एंड द टाइप ऑफ टीम यू विल बी वर्किंग विद। इसीलिए आई थिंक आई प्रेफर के ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है ये जरूर हो, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाता है और कंपनी के लिए भी, रादर देन गेटिंग दैट रिजेंटमेंट इन योर माइंड कि अब मैं क्या करूं। सो ये एंट्री लेवल जॉब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके ग्रेट अलीना। अच्छा, अभी जिस तरह हमें पहले एक सवाल मिला था अबाउट दिस पर्सन जो पीएचडी कर रहे थे, उसी से रिलेटेड अगर उस्मान, फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गेटिंग इनटू द हु आर एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर्स, तो उनके लिए क्या recommended है that should they be focused on one field and try to gain as much experience in that, yeah, if they are experimenting, does that look good on the profile, having experiences from different fields, बहुत सारी चीज़ों में हमने experiment किया हो, does that look better, or is it better to try and focus on a narrow number of fields? What do you think? अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आप जैसे मैंने अभी मेंशन किया, आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन इंटर्नशिप्स में कर लें, ज्यादा ये है। जब आप अपनी फर्स्ट जॉब रोल करते हैं तो आपका डिपेंड करता है, अगर इफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम देयर तो आप उस जॉब में ज्यादा टाइम ना लगाएं, फिर देन यू शिफ्ट, लाइक 1 year इज द मैक्स, देन यू हैव टू शिफ्ट। अगर आपका ज्यादा टाइम उस पर लग रहा है एंड यू आर स्टिकिंग टू इट, तो एटलीस्ट आपको 3 years आपको फिर उस फील्ड में लगाने हैं। अगर आप उसकी if you want to shift to another tech or maybe type of role, जैसे डेटा एनालिसिस से आप डेवलपमेंट साइड पे आ गए हैं, तो इट्स अ, वैसे ये स्किल है काफी, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल देन स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 2-3 years, देन यू स्टार्ट योर जॉब, डिफरेंट जॉब। उसमें यह है कि आपको जॉब हॉपिंग नहीं ज्यादा नजर आनी चाहिए शुरू में, स्पेशली इन स्टार्ट ऑफ योर करियर। आपको क्लैरिटी थोड़ी आई होगी तो वहां पे ये है कि आप 1 year का आप मैक्सिमम शुरू की एक जॉब में कर सकते हैं। इफ इट वाज इंटर्नशिप से आप उधर जॉब स्टार्ट की है तो आप उसको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट एस्पेक्ट अच्छा लगा है।
लेकिन उसके बाद आपने जो भी जॉब रोल लिया है, देन स्टिक टू इट, अनलेस और अनटिल यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पे आपको कोई टीम को लीड करते हैं, तो वहाँ पे आप उसके साथ अपनी डिफरेंट फील्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक लीडरशिप साइड पे लीड करने के लिए, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऐड कर सकते हैं बाद में लेटर ऑन। लेकिन फर्स्ट जॉब मैक्सिमम 1 year, डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू एंड देन स्टिक टू इट। और जॉब हॉपिंग को कंट्रोल करें, एटलीस्ट 2 years आपने एक जॉब में जरूर किए हों, सो दैट वुड बी ग्रेट। पर आजकल की जनरेशन जो है वो मैक्सिमम 1.5 years या 1.8 year का कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ट्राई टू स्टिक टू अ कंपनी, ताकि कंपनी भी आपकी प्रोग्रेस कर सके, आपको बहुत सेल्फिश ना माने, और आप भी थोड़ा सा सीख सकें उस कंपनी से। सो दैट वुड बी ग्रेट। Okay, I'm student of software engineering, Halima, third semester. How I build best profile. ओके, सेम हलीमा, आप भी थर्ड सेमेस्टर में होते हुए भी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज डू ऐड दोज इन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में आपके स्किल सेट, आपकी क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके साथ टीम में काम कर रहे थे आप, आपने सिर्फ मेंशन ये करना होगा कि व्हाट द क्वालिटीज यू कैन शो योर इन दैट प्रोफाइल, वर यू लाइक, what did you do, like did you manage the team, आप अपनी उस ग्रुप की लीड कर रही थी, आइडियाज कौन जनरेट कर रहा था, who was working on the development side, या अगर आपने वो सोलो प्रोजेक्ट किया है, so what made you do that, और उसकी वजह से what do you think it can help the companies if the companies have that project or implement that, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो तो शो करने हैं, लेकिन आपने ये शो करना है कि व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड, कि आपके काम को अगर कोई कहीं पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनको क्या फायदा हो सकता है, तो वो वैल्यू देख रहे होते हैं। तो उस माइंडसेट के साथ आप अपनी प्रोफाइल अभी से बिल्ड करने शुरू कर दें, इट विल हेल्प यू इन योर इंटर्नशिप्स एज वेल। Okay, Alina, now we have a very interesting thing. Somebody has shared his, sorry, I shouldn't be saying somebody. Let me just check the name. Yeah. मुबशिर, Muhammad Mubashir, yeah. He's a software engineer intern and he's shared his resume with us. I'll just share the screen and guide him on that, please. sure. Can you see it? Yes, I can. Okay, please let me know if you want me to slide down. Overall start of this profile is really good. It's very clear, to the point. Okay. अच्छा, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल डाउन, लेकिन मुझे आइडिया हो गया है, क्योंकि यूजुअली जब आप प्रोफाइल देखते हैं तो आपके शुरू के 5 seconds में ही आइडिया होने शुरू हो जाता है कि ये किस तरह का माइंडसेट और किस तरह से प्रोग्रेशन हो रही है यहाँ पे। एंड यस, ओवरऑल मुबशिर, आई थिंक योर प्रोफाइल इज रियली गुड। सिर्फ इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि एक एडिशनल आपको हेल्प आउट हो सकता है, इफ़ यू कैन ऐड, जैसे आपने इधर मेंशन किया हुआ है, आई थिंक आई जस्ट सॉ द नंबर 85% somewhere, yes. जस्ट ऐड, आप थोड़ा सा इसमें अगर अपने अकम्पलिशमेंट्स थोड़ा सा मेजरेबल बना लें, जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट में जैसे काम किया था, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपने काम कर लिया, और मे बी आपने उसकी एक प्रोजेक्ट आपने बनाया था और उसकी पहले शुरू में फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी वाज जो भी थी, उसकी एफिशिएंसी आपने आपकी इनपुट और डेवलपमेंट साइड से और समथिंग, या उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से उसमें 15% कोई वैल्यू ऐड हो गई थी, और लाइक ऑल दोज परसेंटेज नंबर्स, इफ यू कैन ऐड दोज, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। कि टेक प्रोफाइल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि आप स्किल्स तो मेंशन कर रहे होते हैं, आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे मेंशन की हुई है वेरी क्लियरली। यहाँ पे अगर आप सिर्फ उसमें परसेंटेज या मेजरेबल्स कर लें कि हाउ इट हेल्प्ड, हाउ इट प्रोवाइडेड द वैल्यू इन नंबर्स, तो इट विल बी हेल्पफुल इन एटीएस के साइट पे भी आपकी प्रोफाइल सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगी। अदरवाइज इट्स ओवरऑल अ गुड प्रोफाइल।
So tell us, Mohammed, आपने इसको use करके have you applied anywhere yet? Would you like to tell us? Okay, so he mentioned yet. Yes, I think he wanted to mention, but no response. Okay, so what are you exactly looking for? ये फिर थोड़ी सी डिटेल आ जाती है कि आपकी किस तरह से रिस्पॉन्स, आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपकी Job description से I think ATS friendly इसको वो करने की ज़रूरत है, right? वाज According इट to what job you're applying for. So can you tell us कि आप कौन सी job के लिए apply कर रहे थे या क्या position थी? ओके ओके। अच्छा, आप एक चीज में थोड़ा सा एक यहाँ पे यू कैन से टिप और समथिंग मेंशन कर सकती हूँ। जब आप इंटर्नशिप्स के लिए कर रहे हैं या फर्स्ट जॉब के लिए, दोनों साइड पे आपको एक चीज हेल्प आउट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने जिस कंपनी को रीच आउट किया, सबसे पहले तो आप उस कंपनी को थोड़ा सा स्टडी कर लें कि वहां पे उनकी व्हाट आर दे वर्किंग ऑन, और वो क्या चीज देखते हैं, उनकी टीम के अंदर लोग जिस तरह के हैं उनकी क्या क्वालिटीज हैं, या उनमें कॉमन क्या चीज आ रही है। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। डोंट जस्ट अप्लाई देयर, पहले कंपनी को थोड़ा सा रिसर्च करें, वहां पे जो टीम काम कर रही है उनके बैकग्राउंड में या उनके एक्सपर्टीज या स्किल्स में चीज क्या कॉमन है, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो चीजें आप में हैं या आप उनको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। एक वो चीज एस्पेक्ट आपको हेल्प आउट करते हैं कि वहां पे। दूसरा ये कि आपकी इंटर्नशिप साइट पे आप उनकी, फॉर एग्जांपल वेबसाइट, अगर इफ यू आर इनटू डेवलपमेंट साइट, आपके जो एक्सपर्टीज से रिलेटेड आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उस कंपनी को आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इवन अ स्मॉल स्पेक, कोई भी चीज जहां पे आपको लगता है कि मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर इस कंपनी में ये किया जाए तो इट विल बी हेल्पफुल एंड आई कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आपका ये एक सेंटेंस या आपकी ये एक थॉट प्रोसेस अगले को आपकी प्रोफाइल पे रोकेगी। वो देखना चाहेंगे कि व्हाट यू कैन डू, एंड एटलीस्ट ये आपको एक नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल करेंगे, जस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि व्हाट मेड यू कम विद दिस आइडिया, या आपने उसमें किस तरह से आप हेल्प आउट कर सकते हैं, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ये वैसे आपको कोई मेंशन नहीं करेगा, बट इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ये आपको थोड़ी सी एक एज दे देता है। इतनी सारी एप्लीकेशंस में आपकी एप्लीकेशन पे रुक के आपको नोट करने के लिए नोटिस करेंगे लोग। Great. I hope that helps, Mohammed. And by the way, it was a very nice profile. और बहुत ज़बरदस्त सारी experiences भी लिखे हुए हैं. That's great. So, any other tips for personal branding on LinkedIn पर्सनल for ब्रांडिंग में, university? हाँ. Yeah, please go ahead. ओके, सो लिंक्डइन की एक पर्सनल ब्रांडिंग में अगर आप देखें तो ओवरऑल आप गूगल करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मेंशन हो रही होती हैं, सारा कुछ होता है, बट आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आप किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। डजेंट मैटर, अगर आप उसकी रीच ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यस, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि वीक में कौन से दिन आप किस वक्त करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, तो उसकी रीच ज्यादा होती है, या आपने रोज करना है या दिन में 2 दफा करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप स्टार्ट में, अगर इफ यू आर नॉट यूज टू इट, तो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी इस तरह से यूज करें कि उस पर आप अपना कंटेंट खुद से जनरेट करें, खुद ऐसी चीज बनाएं जो कि ये शो कर सके, जैसे आप टेक से रिलेटेड हैं तो वहां पे टेक ट्रेंड क्या है, वट एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ, वट एवर यू गोइंग थ्रू राइट नाउ। इसलिए वो चीज काफी रेलेवेंट हो जाएगी, बिकॉज आप उस वक्त वो पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, या आपका एक्सपीरियंस है उसमें, या आपको कोई चीज ऐसी लगी है विच इज टेक रिलेटेड, बहुत ऐसी ग्रेट कोई नई चीज आई है विच यू वांट टू शेयर, तो वो आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट शो करता है। ऑल दोज थिंग्स, ऑल दैट कंटेंट विच विल बी शेयरिंग, वो आपका माइंडसेट शो कर रहा होगा। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या चीज शेयर कर रहे हैं, उस चीज को नोटिस किया जाएगा और उस चीज को बड़ा सीरियसली लिया जाता है, कीपिंग दैट पर्सन इन माइंड कि ये हमारे लिए हमारे कल्चर फिट के लिहाज से कैसे होंगे, या कुछ इस तरह से भी हो जाता है। बट जस्ट हैव फन विद इट एज वेल, just show your personality through that.
एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है. एंड आई थिंक वो प्रोजेक्ट से और उससे भी यू कैन डू दैट ना, display your talent through that. Basically you have to present yourself in a way that the world knows what you're capable of. और वो करने के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट, because they can't see you in person, they just go look at your profile, तो आपने अपने प्रोफाइल से प्रेजेंट करना है your capabilities, what you can give them and what you can offer. अच्छा, so अगर जॉब सर्च करनी है फॉर अ बिगिनर, जॉब सर्च के लिए क्या टिप्स हैं? लाइक टू ऑब्वियसली बिकॉज देयर सो मेनी जॉब्स आउट देयर, सो मेनी ऑप्शंस, तो उसमें सर्च कर रहे हैं अगर हम, तो हाउ शुड वी फिल्टर दैट? सबसे पहले तो आप अपने अंदर क्लैरिटी लाएं कि आपको चाहिए क्या, आप किस तरह की जॉब लेना चाहते हैं. अगर आप ओपन टू एनीथिंग एवरीथिंग है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगले लोगों को समझाने के लिए भी. जैसे आपने फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा अपना उस तरह से डिफरेंट तरीके से बताती हूँ. आपने दुआ करनी है अल्लाह से, ठीक है. सो आपको जब खुद क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो अल्लाह कहेगा कि यार पहले खुद तो समझ लो कि आपको चाहिए क्या, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ. लेकिन आप अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी आप जिनको जिस तरह से कहें, पर इसी तरह से अगर इन वर्ल्डली मैटर में अगर आप देखें, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, एटलीस्ट डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए. उसकी बेसिस पे क्लैरिटी जब आ जाएगी तो अगले लोग भी आपकी बात को ज्यादा समझ सकेंगे और ज्यादा इंगेज हो सकेंगे आपकी उस चीज को. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड and just go for it. So yes, mainly that thing. Right. So first discover yourself, self assessment, and then you फिर जो भी चीज pursue करेंगे, obviously that will the doors will open for you. Definitely. Yes, absolutely. So yes, so I guess anything you would like to add here, Alina, because we are done with questions for now. Okay, so other than that, ज़्यादा चीज़ें हैं तो obviously I would prefer कि anybody who needs help they can just contact me individually. मैं उनकी प्रोफाइल को देख के थोड़ा सा आइडिया हेल्प आउट ज़्यादा कर सकूंगी. पर ओवरऑल अगर आपकी प्रोफाइल में क्लैरिटी है, प्रोफाइल बिल्डिंग की अभी बात कर रहे हैं, क्लैरिटी है, तो अपना एक ज़रूर चीज़ जिस पे काम कर लें, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन. एक चीज़ आपको हर जगह बोलनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी. आपकी बेशक वो रेज्यूमे है, लिंक्डइन प्रोफाइल है या इंटरव्यूज है, वहां पे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. अब अपना इंट्रोडक्शन अपने माइंड में एक लिखें, उसको बनाएं, एंड उसको आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलें एंड सी हाउ relevant it is to with your expertise and experience. Make it very like in a very natural flow. It will help you ओवरऑल एज वेल, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा आपका हायरिंग प्रोसेस का, इंटर्नशिप्स का, या जहाँ पे भी आपको एक कॉल आएगी या आप उनसे जाके मिलेंगे तो वो कहेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके, सो आप उसके लिए तैयार हो. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि वो आपसे पूछ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर हो. ये आपकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाएगी. सो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए कि इंट्रोडक्शन आपने एक्साइटिंग इंट्रोडक्शन बनाया हो, बिकॉज ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता. विच आई लर्न, इट्स नोन एज एलिवेटर पिच. जैसे आप एक एलिवेटर में घुसे हैं, वहां पे एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, ही इज बिजी, ही हैज टू लीव द एलिवेटर, जैसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो आप ऐसी क्या चीजें मेंशन करेंगे, मे बी 2-3 लाइन्स. जस्ट थिंक ऑन इट, राइट इट एंड सी कि आपकी वो ऐसी लाइन या इंट्रोडक्शन जहां पे वो सीईओ इज कंपेल्ड कि वो रुके और आपको सुने. ओ यस, कम टू माय ऑफिस, लेट्स टॉक और समथिंग. तो प्रिपेयर दैट इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में आप ये तो सबसे पहली चीज आ जाएगी. उसके अलावा आपको इंटरव्यूज के लिए अगर जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग या इंटरव्यूज दोनों में हेल्प आउट ये करेगी कि आपने कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनके लिए, लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई वी शुड हायर यू, डिफरेंट बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट लेट जो जनरल क्वेश्चंस हैं आप उनमें प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से पॉजिटिव आंसर्स एंड शोइंग योर पर्सनैलिटी. और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट जहाँ पे बेहतर कर सकें, जिसमें ऑन योर प्रोफाइल आपकी पिक्चर्स शुड बी प्रोफेशनल. अगर आप ऑन साइट जा रहे हैं तो यू शुड बी ड्रेस्ड अप प्रॉपरली. दैट इज ऑल्सो यू कैन से योर ब्रांड. सो आप उसमें भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं. ऑल दोज एस्पेक्ट्स. अगर ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, मेक श्योर, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग बहुत उसको कैजुअल ले लेते हैं. आपका ऑनलाइन ऑन साइट जा रहे हैं तो येस, बी देयर ऑन टाइम.
मे बी 10 to 15 मिनट्स अर्ली। ऑनलाइन कॉल्स हैं तो आप 5 मिनट्स अर्ली आ जाएं। ओवरऑल अगर आपने जाते हैं तो बैकग्राउंड, अगर ऑनलाइन कॉल पे जाते हैं तो बैकग्राउंड कॉल में आप यूजुअली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बेड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। प्लीज अवॉइड दैट। बैकग्राउंड आपका इट शुड बी लिटिल प्रोफेशनल एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स, बट वील डिस्कस दैट लेटर। लेकिन ये आपकी सारी ब्रांड है, आपकी पर्सनैलिटी है जो शो हो रही है, जो कि एक पेपर, लिंक्डइन, इंटरव्यूज एंड सब चीज़ों में नजर आ रही होगी। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी टेकन एज समथिंग, लेकिन इंट्रोडक्शन पे जरूर वर्कआउट करें एंड इट विल बी हेल्पफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स। Excellent. So an introduction just say you can make a mark and stand out basically. यस, क्योंकि हर चीज, हर किसी की अपनी क्वालिटीज हैं, पर्सनालिटी क्वालिटीज हैं, या टैलेंट है विच दे आर रियली गुड एट इट, विच कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी देयर स्पोर्ट एज वेल। कोई भी चीज जहाँ पे रुक के वो अगला बंदा आपको सुनना चाहे, आप के बारे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। आपने अक्सर मूवीज भी देखी होंगी, लाइक सूट देखी, समथिंग, जहाँ पे आपने सीईओ या कंपनी हायरिंग मैनेजर से बात करनी है तो उन पे रिसर्च की हो थोड़ी सी कि व्हाट इज देयर लाइकिंग, उनसे आप बात करने का तरीका क्या हो सकता है। आप अपने इंट्रोडक्शन को उसके साथ मैच करके कस्टमाइज करके भी शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप प्रोफाइल्स जेडीज के Right. So लिहाज Alina, से कंपेयर करते हैं। जी, since you mentioned sports, would you be okay telling them about your sports experience? Because mashallah, she is an archer and she's done competitions in that and she's amazing in that as well. So please share your experience as well. थैंक यू। सो यस, आई स्टार्टेड लर्निंग आर्चरी क्वाइट लेट वैसे, लेकिन मेरा जो इंस्पिरेशन थी थ्रू ओलंपिक्स थी। सो दैट वाज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू परसू। आपके लाइफ में आई बिलीव हर किसी को एक स्पोर्ट जरूर लेनी चाहिए एटलीस्ट। इट इज़ हेल्थियर एंड आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प आउट करती है। आप सीखते हैं काफ़ी कुछ, एक दफ़ा जो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरह से, इट कैन बी एनीथिंग। मेरी आर्चरी की साइड पे ये था कि आई प्रोग्रेस्ड रियली वेल इन दैट, इट इम्प्रूव्ड माय फोकस, आई स्टार्टेड गेटिंग माय टारगेट्स। उसकी वजह से आर्चरी जब आप सीखते हैं ना तो उससे ये चीज़ आती है कि आपके जितनी भी आपकी आउटग्रोथ है, आपकी जो बाहर से आप अचीवमेंट्स या अकॉम्प्लिशमेंट्स कर रहे हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन योर स्ट्रेंथ, योर फोकस। उससे आप ये बहुत सारी चीज जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि इफ आई एम अलाइंड एंड बैलेंस्ड फ्रॉम विद इन, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प आउट हो सकता है, आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ में आपका वो किस तरह से। सो स्पोर्ट्स इज समथिंग विच आई वर्कड ऑन, और वो I was the national archer. I represented Islamabad in national games. और वहाँ पे we were a team and we worked there. So we competed. So it was great. And yes, that's an honor. Excellent. Yeah. So multi-talented. So basically, the lesson learned here is कि कोई भी चीज़ हो that you're interested in और आप उसको जब perform करते हैं and you practice for it, you prepare for it, you go through with it and you succeed. So it gives you confidence to do anything in life. And आपको एक तरीका आ जाता है of how to go about things, which is very important in your career, in your studies, किसी भी चीज़ के लिए. So that is amazing. So thank you so much, Alina. You have answered all the questions really nicely, and it has been really insightful. And I'm hoping कि जो आपने हमें professional tips दिए हैं, they're going to be really helpful for everyone here. अच्छा, अगर hope like so. you mentioned कि आपको directly approach करना हो किसी ने, तो what would you recommend कि LinkedIn पे आपको message करें? लिंक्डइन पे मुझे मेंशन कर दें, एंड इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्शन के साथ अगर जो नोट होता है उसमें प्लीज डू मेंशन, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा मुझे गो थ्रू करने के लिए 1-2 दिन से ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज देर आर सो मैनी। सो आपकी अगर उसमें नोट आपने मेंशन किया होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू लाइक एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट क्विकली, एंड देन आई विल कम 1-to-1 आपकी डिस्कशन में कर सकती हूँ आपके साथ। Great. Thank you so much. We know that your time is really valuable and you've taken out time for this and you do this professionally. So doing this for ETL on our platform is really, we really appreciate that. Thank My you so much. pleasure. Okay, I have shared a feedback form for the attendees. Please usko aap fill kare so that we have your feedback for future sessions as well.
Or Alina, one more question which just came to my mind when you were telling us about this. कि LinkedIn पे आप should we be accepting all friend requests that we get, या उसको filter करना चाहिए for even for beginners? What do you suggest there? Okay, so from बाकी लोगों के परस्पेक्टिव से आपकी जो अपनी फील्ड से रिलेटेड है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे. दे कैन बी योर सीनियर्स, जूनियर्स, ऑल दोज पीपल, या जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं टेक रिलेटेड, वहाँ पे आपको वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. बाकी लोगों का ये है कि जनरली भी लोग अपनी उस बेस को इंक्रीज करने के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड देम. इट्स डिफरेंट फॉर रिक्रूटर्स क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आप टेक्स रिलेटेड हैं तो अपनी फील्ड के सीनियर्स, जूनियर्स या उससे जो ब्रांचेस हैं विच यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड ऑल दोज पीपल यू कैन ऐड वैल्यू बाय स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद देम, या आप उनसे सीखना चाहते हैं तो आप उनको ऐड करें. दैट वुड बी हेल्पफुल. Okay, great. Thank you so much. अच्छा, I want to announce कि हमारा अब आगे जो है इंशाल्लाह we're planning a resume writing competition to be held by end of this year इंशाल्लाह. और उसके लिए panel judges के लिए अलीना हम आपको भी request करेंगे and others as well इंशाल्लाह. तो we're planning that out, so that is in the pipeline. And then we will have workshops on time management, work ethics, and all as well. So I would request everyone here जिसने नहीं join किया हुआ to join the community portal. Visit our website and you can find recording, but the links are available on the portal. Thank you so much. Thank you, Lina. Allah Hafiz. Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.